National People's Party of Arunachal Pradesh is profusely thankful to the people of Arunachal Pradesh, the most intelligent voters, the most respected electorates, the senior citizens, office goers, and the general public for recognizing the ideologies, the philosophies, the commitments and manifestos of the National People's Party of Arunachal Pradesh, and thereby supporting our candidate in the recently concluded assembly election in the state of Arunachal Pradesh. We are also thankful to the young generation, the youths of the state of Arunachal Pradesh who have supported the NPP party and make our party popular in the state of Arunachal Pradesh. Today we had a reception meeting, and a felicitation of the newly elected and a designated MLA of the NPP party. In my right side, Sri T. Darang Sahab, he is from 38 Pasighat East. Sri Namge Singh Ji, he is from the 2 Tawang Assembly ST constituency. And in my left side, Sri Oni Baing Ji from the Mariang Gegu Assembly constituency. And the most dedicated leader, the formerly officer of the state of Arunachal Pradesh, Sri P.C. Jilenji, who represented the constituencies, 27 Liromaba constituencies. Today, the state office bearers and the NPP parties, they have received us, they have facilitated the newly designated MLAs of the NPP party. And while giving a facilitation program to the newly elected party, we have taken an opportunity to appoint the NPP legislature party leader, who is myself, Thangong Waham. I am profusely thankful to my newly designated MLAs, the 4 MLAs, for supporting me as the legislature leader of the NPP party. And we have also appointed the chief whip of the National People's Party, and the party organization, the state party office bearers, they have proposed the name of Sri P.C. Jilen, the newly elected designated MLA, as the chief whip of the party. So while doing all these things, we have discussed how to promote, how to strengthen the party. And we have also decided to constitute the block level executive committee, the village level executive committee, and district level executive committee to begin from the elected MLA constituency, 5 constituency. The committee should be constituted very soon, and by the end of July and August. After that, we will go ahead with the neighboring constituencies, the constitution of the block as well as the district committee in all the constituencies. So, and the NPP, so that the NPP will progress, we will strengthen the party at a grassroots level, and we hope the people of Arunachal will accept
and recognize the NPP party. So this is the gist of today's meeting that we have conducted, that we have discussed. Now I invite the media fraternity with due thanks to you all, profusely thankful to you all to know anything and to ask anything if you have to inquire from the National People's Party of Arunachal. वांगम साहब, सबसे पहला सवाल है कि बहुत अच्छा लगा ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इन अरुणाचल प्रदेश इन 2024 इलेक्शन। लेकिन सब लोग जब विधानसभा में आता है तो कोशिश करता है कि हमारा पार्टी बहुमत आया या तो अलायंस गवर्नमेंट बने। आप लोग भी कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों का पार्टी भी अलायंस पार्टनर है बोला, नेडा में है, एनडीए में है बोला, तो क्या लगता है कि आप लोगों का पार्टनरशिप बीजेपी का साथ चलेगा ना ऐसे चलते रहेगा, ना आप सरकार में भी शामिल होने का कोशिश करेगा, ना आप लोगों को लेगा ना नहीं लेगा? NPP under the banner, under the parameter of NEDA, North East Democratic Alliance का तहत हम NPP एक बीजेपी के साथ एक अलायंस है। हाँ, गवर्नमेंट में हम शामिल होने के लिए हम अलायंस करके रखा है। इलेक्टोरल फाइट वो अपना अपना बैटल हिसाब से, इलेक्टोरल बैटल जो अपना हिसाब से करता है, लेकिन आफ्टर इलेक्शन उसको पोस्ट अलायंस में रखता है हम लोग। और डेवलपमेंट के लिए, पीपल्स इंटरेस्ट के लिए हम पार्टनरशिप करता है, आज तक ऐसे करके आया। लेकिन आपके सवाल का अनुसार वो हमको माने नहीं माने वो तो उनका काम है, दैट हमें मालूम नहीं। वो हमारे साथ हमको रखेगा या नहीं रखेगा। भारी मैंने बहुमत में आया है, 46 ना 44 ना 46 आया है MLA, तो उनका मर्जी हमको रखेगा नहीं रखेगा। हम जबरदस्ती भी एंकरिंग नहीं कर सकते कि हमको रखो, ये हम नहीं बोल सकता है, और हमको मत रखो भी नहीं बोल सकते। लेकिन हमारा नेडा का जो मैनिफेस्टो, नेडा का जो रेजोल्यूशन का अनुसार हम एक पार्टनर है डेवलपमेंट के लिए। इलेक्शन तो अपने हिसाब से जीतो हारो, लेकिन डेवलपमेंट के लिए, स्टेट के हित में, स्टेट का डेवलपमेंट के लिए हम एक पार्टनर है। अभी वो 46 आ गया, 50 आ गया, हमको नहीं लेगा अगर बोल देता तो हम क्या कर लेगा? कोई बाइंडिंग तो नहीं है हमारा पास, कोई ऐसे एक्शन लेने का कुछ तो नहीं है उनके पास, वही है बर्डन। हाउएवर ये जो चीज़ है, आई एम नॉट द फाइनल अथॉरिटी। हमारा जो हाई कमान है, नेशनल पीपल्स पार्टी NPP पार्टी का जो हाई कमान है, हाई कमान से इसको डिस्कशन होगा, तो बीजेपी का हाई कमान एंड NPP हाई कमान बात करेगा, उसमें सरकार में हमको रखेगा, जोड़ेगा या नहीं जोड़ेगा। और जस्ट एस माने हमको वरांडा में रखेगा ना बेडरूम में रखेगा, वो उनका बीजेपी हाई कमान एंड NPP हाई कमान, लेट देम डिस्कस। तो हम अब 5 MLA अभी कॉन्डक्ट जी से, नेशनल प्रेसिडेंट से मिलेगा, उसका बाद में उनका एडवाइस में ही हम चलेगा। एंड दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर अस टू कमेंट कि हम बीजेपी का साथ है, साथ नहीं है, नहीं है भी हम नहीं बोल सकते, साथ है भी हम नहीं बोल सकते। क्या बोलेगा हमारा हाई कमान वो मालूम नहीं। इसलिए आपका जो सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, फिर भी इतना में हम मेरा जवाब। दूसरा एक था कि बहुत कोशिश किया था आप लोगों ने कि 60 का 60 सीट फिलअप करने का, लेकिन फिर भी प्लानिंग हुआ 30, टिकट मिला 20, आया 5, 15 ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो लोगों को किस तरह से देखते हैं कि क्या कहीं कमजोरी रह गया था, न चैलेंज ज़्यादा था? इसमें NPP पार्टी का कोई कमी नहीं है। NPP पार्टी अभी भी एकदम स्ट्रांग लीडर है। जितना भी जो कंटेस्टेड कैंडिडेट है जो सक्सेस नहीं हो पाया, दे आर ऑल्सो अपना अपना जगह में ग्रेट लीडर है। वी आर नॉट अ मियर पॉलिटिशियन, वी आर अ बिग लीडर। Leader thinks for the next generation and the politician thinks for the next election. हम केवल इलेक्शन के लिए सोचता नहीं है, हम जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन के लिए सोचता है। हमारा जो डिफीटेड, जो अनसक्सेसफुल, नैरोली अनसक्सेसफुली जो कंटेस्ट किया, दे आर ऑल्सो हियर विद अस। नेक्स्ट टाइम हम जीतेंगे और हम पब्लिक के लिए, जनता के लिए काम करेगा। वी आर जस्ट नॉट अ मेयर पॉलिटिशियन। ये जो हमारा कोई कमी नहीं है, बस इतना हो सकता है कि दोज इन पावर, जो लोग पावर में है,
तो बोल रहा था मनी पावर नहीं करेगा, पैसा नहीं चलाएगा, लेकिन वो पैसा चला दिया। पैसा चला तो वो लालच तो ऐसी चीज़ है ना, एवरीबॉडी तो लालच का गुलाम होता है। हाँ, एवरीबॉडी, एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ लालच का गुलाम। जो पैसा दिखाएगा तो पैसा ने पत्थर को तोड़ सकता है, पानी में आग जला सकता है पैसा, और गोली भी वापस जाता है पैसा में। तो ऐसे हो गया होगा हमारा वोट, तो वो अदरवाइज हम में कुछ कमी नहीं है। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा बोला सर आपने। दूसरा एक सवाल था कि आप लोग से बिलोंग करते हैं, आप खुद भी एक जीत के आया है इलेक्शन होकर के। कैसा रहा था आपका चुनाव, आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कीजिए। हालांकि आप पूर्व में भी मंत्री रहे हैं। मेरा जो लोंगडिंग का, मेरा लोंगडिंग तो पीपल्स ऑफ लोंगडिंग बहुत अच्छा है, एकदम ट्रू डेमोक्रेट है। वहाँ के जो लोग हैं ना, वो पैसा रुपया में माना भटकता नहीं है, लालच का गुलाम नहीं है हमारा पब्लिक ना, लालच का गुलाम नहीं है। वो दे हैव डिसाइडेड कि हम हमको कमबैक लाएगा। लेकिन आप पैसा का गुलाम नहीं होता। आपका डिस्ट्रिक्ट में तो 1 करोड़ सीज हुआ था। मेरा डिस्ट्रिक्ट में, रिकॉर्ड वायलेशन का। मेरा डिस्ट्रिक्ट में 1 करोड़ किसका सीज हुआ हमको मालूम नहीं। वो जो पैसा रिलीज सीज जिसका भी हुआ होगा, वो बीजेपी का हो सकता है, कांग्रेस का भी हो सकता है, पीपीए का भी हो सकता है, एनसीपी का भी हो सकता है, एनपीपी का भी हो सकता है, हम मालूम नहीं है। लेकिन हमारा साइड से मेरा जो एक ही कैंडिडेट है, तो हम हमारा से हमसे कोई पैसा सीज नहीं हुआ। हमारा पास पैसा है ही नहीं है, कहाँ का पैसा। हम तो बस पब्लिक का प्यार से जीता है। आई एम थैंकफुल टू पीपल ऑफ लोंगडिंग 59 लोंगडिंग कंस्टिट्यूंसी। वहाँ का लोग जो है ना, लीडरशिप को चाहिए, लीडरशिप को, वहाँ दे वांट परफॉर्मेंस, दे वांट लीडरशिप। तो वो जो लीडरशिप हमने दिया लास्ट 15 ईयर्स में, वो जो परफॉर्मेंस हमने दिया, तो उसको लेके वो कमबैक लाए ये लोग ने। और लोंगडिंग में ये हिस्ट्री है कि डिफीटेड हारा हुआ एमएलए कभी वापस नहीं आता है। तो ये जो कमबैक आज हमने फर्स्ट लोंगडिंग कॉन्स्टिट्यूंसी में क्रिएट किया है, ये हमने नहीं किया, ये पीपल्स, मेरा जनता ने, मेरा पब्लिक ने किया। आई सैल्यूट देम, आई रेस्पेक्ट देम। दे कुड रिकग्नाइज द रियल लीडर, द ट्रू लीडर, द परफॉर्मिंग लीडर, which is me. So I will try myself to live up to their expectation. उनका एक्सपेक्टेशन तक, उनका सपना को पूरा करने के लिए, उनका विचार सोच को पूरा करने के लिए I will try my best, and I will try to be an ideas merchant, a dream merchant. I will try to create the pathway for their development. So यही आपने बोला कि एमपीपी पार्टी के कुछ कमी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से एक चीज़ कमी है, वो है यू हैवंट पुट एनी फीमेल कैंडिडेट फ्रॉम योर पार्टी। तो इस पे आप क्या जवाब देना चाहोगे? हाँ, वही ना प्रॉब्लम, एनपीपी पार्टी में कोई कमी नहीं है, लेकिन फीमेल में थोड़ा कमी होगा क्या? क्योंकि फीमेल आगे बढ़ के नहीं आया है, तो हम क्या करें। फुटबॉल होने से तो जबरदस्ती खिलाना था, बास्केटबॉल होने से भी चलो खिलाना था। ये इलेक्शन में तो ज़बरदस्ती कोई नहीं कर सकता है, तो फीमेल कोई आया नहीं। इसीलिए सॉरी अरुणाचल के जो माताओं, आपका जो फीमेल है, वोमेन है, आप कभी किसी से कम नहीं है। आप आगे आइए और एनपीपी के साथ जोड़िए, और हम आपको सपोर्ट करेंगे। हम आपको डेस्टिनेशन दिखाएगा, दिशा दिखाएगा, और अरुणाचल की हित में हम लोग सब मिलके आगे बढ़ेगा। थैंक यू, थैंक यू, जीते हैं तो थैंक यू। आपका अभी माइंड में क्या है, आपका मैनिफेस्टो क्या था जिसको अभी आप कंप्लीट करेंगे पब्लिक के लिए? मैनिफेस्टो तो बहुत सारा है। मैंने इलेक्शन के दौरान मैनिफेस्टो बहुत सारा जो एक एमएलए जो सिंपल वे में जो कर सकता है, अपने से कर सकता है, ऐसे बहुत सारा है। तो लेकिन मेरा टॉप प्रायोरिटी रहेगा बीइंग तवांग एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उसके लिए रोड मेंटेन रहना, रोड कंडीशन रहना बहुत ज़रूरी है। देन आपका नेटवर्क ये रहना बहुत ज़रूरी है, और लाइट। तो मैं इन 3 चीज़ों को ऊपर मैं ध्यान दूंगा, मैं प्रायोरिटी में रखूंगा। अगर ये 3 चीज़ ठीक होता है तो हमारा वहाँ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन
है, इसलिए बीइंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमारा वहाँ पे आदमी बाहर का टूरिस्ट फ्लो होगा। अगर टूरिस्ट फ्लो होता है तो हमारा वहाँ का इकोनॉमी बढ़ता है। तो मेरा प्रायोरिटी यहाँ पे इतना 3 चीज़ का रहेगा। तो सर जो फॉर्मर वहाँ के जो एमएलए थे, जी। जो ये दावा है जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए काफ़ी उसी वक्त में अच्छा चले रहा किया था, तो वहाँ में कुछ कमी दिखाई नहीं दे रहा था। आप अभी उसको कैसा बेटर करेंगे? सबका वही कहना था कि तावांग टूरिस्ट के लिए काफ़ी फेमस ही रहा है, तो आप उसमें क्या और नया चीज़ डालेंगे? नहीं, उसमें ऐसा है कि अभी हमारे तवांग के जो फॉर्मर एमएलए साहब ने बहुत कुछ किया है, लेकिन फिर भी कुछ उसमें थोड़ा सा लाइट का थोड़ा अभी भी प्रॉब्लम है और नेटवर्क का भी थोड़ा प्रॉब्लम है। वैसे रोड तो हमारा ऑनरेबल सीएम साहब का कारण बहुत अच्छा है, तो मैं फिर भी उसको मतलब और इम्प्रूव करना चाहता हूँ। उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो उसको मैं और इम्प्रूव करना चाहता हूँ। काफ़ी सोचने का बात है, ई गवर्नेंस खोला गया था तो सीएम का तरफ से डिक्लेयर किया गया था, लेकिन अभी भी अगर उस जगह में नेटवर्क का इशू है तो काफ़ी ये चीज़ सोचने वाला बात है। तो आप लोग का ये अभी जो आपका जो अभी आपने 3 पॉइंट बताया है, तो आप कब से ये चीज़ को करेंगे? जब गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगा उसके बाद आपका सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप तो मेरा ये 3 चीज़ को मैं लेके मैं अपना सीएम साहब को सामने रखूँगा। फिर मैं जो नेटवर्क प्रोवाइडर है वहाँ पे जाऊँगा। फिर मैं जैसे 3 मैंने चीज़ बताया इसके ऊपर मैं रोड तो वैसे मोटा मोटी ठीक है, लेकिन लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैं उसको सीएम साहब के पास जाके लाइट के ऊपर मैं सीरियस डिस्कस करूँगा। फिर नेटवर्क प्रोवाइडर के पास जाके मैं मिलूँगा। जहाँ तक आपको जनता का सपोर्ट से इतना जो प्यार मिला है, आपका ऊपर विश्वास करके आपको उनका लीडर चुना है, तो उनका पब्लिक के लिए एक छोटा सा मैसेज। मेरा मैसेज है कि मैं ट्रूथ जो तवांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है तो उन सब ने मुझे अपना प्यार दिया, मेरा ऊपर में विश्वास जताया, मुझे मैंडेट दिया। मैं जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा मुझे मैंडेट दिया, तो मैं उनके लिए मैं थैंक्स कहना चाहूँगा और मैं उनको भरोसा देना चाहूँगा कि मैं जो उन्होंने उम्मीद किया उसको ऊपर में मैं खरा उतरने का पूरा कोशिश करूँगा। तो वंस अगेन मैं उन सबको फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू।